everyone, welcome to the second class of variations. In today's class, we'll be learning those questions in which a quantity remains partly fixed and partly varies with another variable. Also, we'll be learning the concept of joint proportion and then extending that concept of joint proportion into the concept of chain rule. So let's start with the first topic of the day. The topic deals with those quantities which are partly fixed and partly varying. Let us understand the concept by picking up a very simple example. The cost of production of an article X is partly fixed and partly varies with the number of units being produced. The cost of production of 30 units is Rs 7200 and the cost of production of 50 units is Rs 9600. If 60 units are produced, then find the total cost of production. इस कंसेप्ट में समझने वाली चीज़ ये है कि जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के हमेशा दो कंपोनेंट्स रहते हैं, एक फिक्स कंपोनेंट होता है और एक वेरिएबल कंपोनेंट होता है. फॉर एग्जांपल लेट अस से मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मेरी एक फैक्ट्री है जहाँ पे मैं नट्स एंड बोल्ट्स मैन्युफैक्चर करता हूँ. अब जितने मैं नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा मैन्युफैक्चर करूँगा उतना ज़्यादा मुझे रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा. ऑल्सो लेट अस एज्यूम कि जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग है दैट टेक्स प्लेस ओवर सर्टन मशीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है. सो एसेंशियली जितना मैं प्रोडक्शन ज़्यादा करूँगा, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा प्रोड्यूस करूँगा उतना मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आएगा. ऑल्सो लेट अस से दैट मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए डेली वेज लेबरर्स को हायर करता हूँ, तो मैं दिहाड़ी लगाने वाले मजदूरों को रोज़ हायर करता हूँ अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए. तो अब अगर मुझे ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो मुझे ज़्यादा वेजेस देने पड़ेंगे टू दोज डेली वेज लेबरर्स. ऑब्वियसली जितना प्रोडक्शन ज़्यादा होगा उतने मेरे को नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा रिक्वायर्ड है, उतना मेरा लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगा. सो इन द एग्जाम्पल एट हैंड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द कॉस्ट ऑफ रॉ मटीरियल्स एंड द कॉस्ट ऑफ लेबर इज माई वेरिएबल कॉस्ट. मोर इज माई प्रोडक्शन, मोर इज दिस वेरिएबल कॉस्ट. नाउ कंसिडर द फैक्ट कि जिस जगह पर, जिस प्लेस पर मैं अपना मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, जिस प्लेस पर मेरा फैक्ट्री लगा हुआ है वो एक रेंटेड प्लेस है. सो आई एम मैन्युफैक्चरिंग द एंटायर थिंग इन अ रेंटेड प्रेमिसेस. अब एट द एंड ऑफ द डे देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेंट दैट आई हैव टू पे एवरी मंथ टू यूज दिस स्पेस. दिस इज माई फिक्स्ड कॉस्ट. इवन इफ आई एम नॉट प्रोड्यूसिंग इवन अ सिंगल यूनिट एट द एंड ऑफ द मंथ, ये कॉस्ट तो मुझे फिर भी बेयर करना ही पड़ेगा. So essentially for my manufacturing there is a fixed cost which I have to pay every month irrespective of whether I am producing things or not. That's my fixed cost. And then there's a variable cost in the form of rent, raw material, etc., which varies or which increases with the production at hand. Now let us put this thing in the form of a mathematical equation. Can I say my total cost is always represented as a fixed cost and a variable cost? Now this variable cost scales up with number of units being produced. So अगर V per unit cost है and N refers to the total number of units being produced, this NV will increase with the value of N. So my total cost is nothing but my fixed cost plus my variable cost, and the variable cost increases with the value of n or with the value of units being produced. अब अगर हमें इतना कंसेप्ट समझ लग गया है, if we are able to follow this equation well, then let us take this understanding onto the given question at hand. The first part of my question says when 30 units are being produced, the total cost is 7200. So अगर value of n मेरे पास 30 है तो total cost 7200 है. Let us recreate this equation for 30 units being produced. So total cost is 7200. Now this 7200 is of some fixed cost plus 30 units का variable cost. तो ये जो 7200 का total cost है इसमें एक fixed component है और उसके अलावा 30 units का variable component है. Next, my question says that when 50 units are produced, the total cost is 9600. So again, 9600 total cost है जिसके अंदर डेफिनेटली एक फिक्स्ड कंपोनेंट है और इसके अलावा 50 यूनिट्स का वेरिएबल कंपोनेंट है. नाउ आई हैव गॉट टू इक्वेशंस इन एफ एंड वी. ये दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जा सकता है टू रिड्यूस द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एफ एंड वेरिएबल वी. लेट्स जस्ट डू दैट. लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन 1 and let me call this as equation 2. Now I'm going to subtract my equation 1 from equation 2. So what happens जब मैं equation 2 में से equation 1 को subtract करूं?
9600 minus 7200 gets me 2400. F minus F gets cancelled out. 50V minus 30V gets 20V. So from here, can I say that variable cost per unit is 120 rupees? Now, if I've got the value of variable V, I can take this value and substitute it into the equation 1. So can I say now my equation 1 looks something like this. 7200 equals fixed cost plus 30 units का variable cost. अब अगर एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास 120 रुपीज आ रहा है तो 30 यूनिट्स का वेरिएबल कॉस्ट 3600 हो जाएगा. सो 7200 इक्वल्स फिक्स्ड कॉस्ट प्लस 3600. तो ये 3600 को यहाँ पे लाके माइनस कर लेते हैं. फ्रॉम हियर आई एम एबल टू डिड्यूस दैट द फिक्स्ड कॉस्ट इज 3600. नाउ इफ माय वेरिएबल कॉस्ट इज 120 रुपीज पर यूनिट एंड माय फिक्स्ड कॉस्ट इज 3600, फ्रॉम दीज टू कैन आई से माय टोटल कॉस्ट का इक्वेशन now ends up looking something like this. Total cost equals fixed cost plus n चीजों का variable cost. Now what I am supposed to find in this question? इस question में पूछा गया है that if 60 units are produced then what will be the total cost. अब अगर मुझे 60 units produce करने हैं तो इस equation में मुझे n का value 60 डालना है. So can I say my total cost will be nothing but 3600 plus 60 times 120. Now 6 12s are 72. So 60 units का variable cost 7200 हो गया. 3600 plus 7200, the total cost ends up becoming 10,800 rupees. Hopefully we are able to follow this question. Now there's an easier method, almost an oral method of solving this question. In the previous discussion, we have understood that when we talk about total cost, it has two components, a fixed component and a variable component. अब जो फिक्स कंपोनेंट है ये तो फिक्स्ड ही रहता है. दैट मीन्स चाहे मैं 30 यूनिट्स प्रोड्यूस करूं, चाहे 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करूं, चाहे मैं 60 यूनिट्स प्रोड्यूस करूं, फिक्स कंपोनेंट तो चेंज नहीं होगा. लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है दैट स्केल्स अप विद द नंबर ऑफ यूनिट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड. तो इस एग्जांपल में अगर मैं 30 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा था और मेरा टोटल कॉस्ट 7200 था, इसके बजाय अगर मैं 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करूं तो टोटल कॉस्ट 9600 हो जाता है. कैन आई से 7200 से 9600 आते हुए हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो 2400 से बढ़ गया. अब अगर मेरा टोटल कॉस्ट 2400 से इंक्रीज किया है एंड आई ऑल्सो नो कि जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो चेंज नहीं करता, तो कैन आई से ये 2400 रुपीज का जो टोटल कॉस्ट में इंक्रीज है दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू 20 मोर यूनिट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड. पहले हम 30 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, अब हम 50 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो जब हमने 20 यूनिट्स और प्रोड्यूस किए तो उससे मेरा टोटल कॉस्ट 2400 बढ़ गया. दैट मीन्स 20 यूनिट्स का एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट 2400 है. फ्रॉम हियर आई कैन डायरेक्टली डिड्यूस दैट द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ वन यूनिट इज 120 रुपीज. 2400 अगर 20 यूनिट्स का है तो एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट 120 रुपीज है. Furthermore, my question says that what will be the total cost when 60 units are being produced. Again, getting back onto the basics. जब हम 50 units produce कर रहे थे तो जो fixed cost थी 60 units produce करने पे भी वो fixed cost same ही रहेगी. So can I say अगर हम 50 units की बजाय 60 units produce करते हैं तो मेरा fixed cost तो change नहीं होगा. Change क्या होगा? Variable cost. सो कैन आई से 50 यूनिट्स का अगर टोटल कॉस्ट 9600 है और 60 यूनिट्स का मुझे टोटल कॉस्ट निकालना है तो 50 यूनिट्स के कॉस्ट में मैं 10 यूनिट्स का वेरिएबल कॉस्ट ऐड कर सकता हूं. सो 9600 प्लस 1200 गेट्स मी दी टोटल कॉस्ट ऑफ 60 यूनिट्स एज 10,800. Now this is a very handy concept and a very easy concept, and you can probably solve all the questions of this variety using this direct method. Let's move on to the next example now. The cost of manufacturing is partly fixed and partly varies directly with the square of number of units produced. 40 units are produced and the cost of manufacturing turns out to be rupees 1200. If twice as many units were produced, the cost becomes rupees 2000. If half as many units were produced, what would have been the cost? इस क्वेश्चन में जो टोटल कॉस्ट है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक फिक्स कंपोनेंट है और एक वेरिएबल कंपोनेंट है जो कि नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के स्क्वायर के साथ वेरी करता है. सो कैन आई से इस क्वेश्चन के लिए अगर मुझे टोटल कॉस्ट का इक्वेशन बनाना है तो टोटल कॉस्ट का इक्वेशन वुड बी
fixed cost plus n square times the variable cost. V represents the variable cost per unit. हम उसको n square से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट का वेरिएबल कंपोनेंट है that varies with the number of units produced का स्क्वायर. नेक्स्ट माय क्वेश्चन इज कि जब 40 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया गया तो टोटल कॉस्ट जो हमारे पास था वो 1200 रुपीज था. सो व्हेन 40 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड द टोटल कॉस्ट वाज 1200 रुपीज. सो व्हाट आई एम सेइंग हियर इज दैट टोटल कॉस्ट इज 1200 व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज 40. अब n की वैल्यू अगर 40 आएगी तो n स्क्वायर की वैल्यू 1600 हो जाएगी. नेक्स्ट माय क्वेश्चन इज व्हेन ट्वाइस एज मेनी यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड द कॉस्ट बिकेम 2000. तो 40 यूनिट्स का ट्वाइस 80 होगा. तो जब हम 40 की बजाय 80 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा जो टोटल कॉस्ट आता है वो 2000 रुपीज है. सो कैन आई से टोटल कॉस्ट ऑफ 2000 रुपीज इज देयर व्हेन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर 80. अब 80 अगर n का वैल्यू है तो n स्क्वायर का वैल्यू 6400 हो जाएगा. राइट, वी आर गेटिंग टू इक्वेशंस. लेट्स कॉल इट एज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. अब ये दो इक्वेशंस में से मुझे f एंड v का वैल्यू निकालना है. कैन आई टेक माई फर्स्ट इक्वेशन एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन. सो आई एम सब्ट्रैक्टिंग द फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन. सो 2000 माइनस 1200 गेट्स मी 800 ऑन माई लेफ्ट साइड. राइट साइड के ऊपर f से f कैंसिल हो जाएगा. 6400 माइनस 1600 गेट्स मी 4800. Now from here can I say that the variable cost will be 800 divided by 4800 or perhaps 1 by 6. So variable cost per unit ends up becoming 1 by 6. Now if the variable cost is 1 by 6, I can take this value of v and substitute this into equation 1. So my equation 1 now looks like 1200 equals fixed cost plus 1600 into 1 by 6. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सकता है. आई कैन राइट इट एज 800 by 3. इसको मैं फर्दर डेसिमल फॉर्म में लिख सकता हूं बट लेट्स जस्ट लीव दिस इन द फ्रैक्शनल फॉर्म. सो 1600 by 6 ends up becoming 800 by 3. From here can I say my fixed cost is nothing but 1200 minus 800 by 3. अब यहाँ पे 3 को एलसीएम ले लेते हैं. सो 3600 minus 800 that gets me 2800 by 3 as the fixed cost. अब अगर ये मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है और ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ v एंड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ f, कैन आई से माय इक्वेशन फॉर टोटल कॉस्ट ends up becoming fixed cost which is 2800 by 3 plus n square times the variable cost which is 1 by 6. Furthermore, my question says what would have been the cost if the number of units produced would have been half. तो अगर हम 40 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, अगर हम 40 यूनिट्स के बजाय हाफ यूनिट्स यानी कि 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करें तो टोटल कॉस्ट क्या होगा. टोटल कॉस्ट का इक्वेशन मैं बना चुका हूं. अब मुझे यहाँ पे सिर्फ n का वैल्यू 20 सब्स्टिट्यूट करना है. लेट्स डू दैट. कैन आई से माय टोटल कॉस्ट विल एंड अप लुकिंग समथिंग लाइक 2800 by 3 plus n square. 20 square is 400. So 400 by 6. Now 400 by 6 is nothing but 200 by 3. अब डिनोमिनेटर सेम हो गया. 2800 by 3 plus 200 by 3 gets me 3000 by 3 or perhaps 1000 is my answer. So total cost of producing 20 units was rupees 1000. Hopefully we all are able to understand this example. 2 more examples and then we move on to the next topic. The cost of manufacturing of article X is partly fixed and partly varies directly with the number of units produced. When 10 units are produced, the cost per unit turns out to be rupees 270. When 40 units are produced, the cost per unit is rupees 180. Find the cost per unit when 100 units are produced. इस क्वेश्चन में हमें टोटल कॉस्ट देने की बजाय कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है. देखिए, अगर मेरे पास टोटल कॉस्ट है और मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं तो मैं टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकता हूं. एंड वाइस वर्सा, अगर मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके मैं टोटल कॉस्ट निकाल सकता हूं. In my given question, it is told to me that when 10 units are produced, the cost per unit turns out to be 270. अगर हमने डिस्कशन का लॉजिक समझा है तो मैं कह सकता हूं कि अगर 10 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं और कॉस्ट पर यूनिट 270 रुपये है
तो multiplying the two, I can say that the total cost of production is 2700 rupees. Furthermore, when 40 units were being produced, the total cost per unit was 180. From here, can I say that the total cost was 7200? अब जब 10 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे थे तो टोटल कॉस्ट 2700 थी, और जब 40 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो टोटल कॉस्ट 7200 है. आई ऑलरेडी नो कि जो मेरा टोटल कॉस्ट है उसके अंदर एक फिक्स कंपोनेंट है और एक वेरिएबल कंपोनेंट है. जब नंबर ऑफ यूनिट्स को बढ़ाया जाता है तो वेरिएबल कॉस्ट स्केल अप होती है. फ्रॉम हियर कैन आई से कि अगर हमने 2700 से 7200 कॉस्ट को किया तो इसमें जो 4500 रुपीज का इंक्रीज आया टोटल कॉस्ट में, that was corresponding to the increase of 30 units of variable cost. So 4500 rupees का जो increase आया है that corresponds to the variable cost of 30 units. So from here can I say 4500 equals variable cost of 30 units, or perhaps the variable cost of 1 unit is 150 rupees. If the variable cost of 1 unit is 150 rupees and I have to find the total cost of producing 100 units, can I say comparing it with the total cost of producing 40 units, it's like saying कि 40 के comparison में अगर मुझे 100 units produce करने हैं तो मुझे 60 units ज़्यादा produce करने हैं. 60 यूनिट्स ज्यादा प्रोड्यूस करने का मतलब है कि 60 यूनिट्स का वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा. अगर एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट 150 रुपीज है तो कैन आई से 60 यूनिट्स का वेरिएबल कॉस्ट वुड बी 150 इंटू 60 और परहैप्स 9000 रुपीज. तो इस कॉस्ट के अंदर मुझे 9000 रुपीज ऐड करने हैं सो दैट द न्यू कॉस्ट एंड्स अप बिकमिंग 16200. अब 16200 टोटल कॉस्ट है 100 यूनिट्स का. अगर 16200 टोटल कॉस्ट है 100 यूनिट्स का, फ्रॉम हियर कैन आई से कॉस्ट पर यूनिट इज 162 रुपीज. होपफुली वी आर एबल टू फॉलो दिस एग्जांपल. कुछ खास मुश्किल है नहीं. द ओनली थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट टोटल कॉस्ट की बजाय जब कॉस्ट पर यूनिट दिया हो तो क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू एग्जांपल 4 which follows the same concept. Under a postpaid scheme, the telephone bill is fixed monthly amount and a variable amount which varies directly with the number of calls made. The average cost per call turns out to be 80 paisa when 120 calls are made and is 75 paisa when 150 calls are made. Find the average cost per call when 200 calls are made. इस क्वेश्चन में जो पहली चीज मुझे दी हुई है वो ये है कि जब हम 120 कॉल्स करते हैं तो पर हेड कॉस्ट 80 पैसा आती है. अब अगर हमने एग्जाम्पल 3 के कंसेप्ट को फॉलो किया है, आई ऑलरेडी नो कि अगर मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स को पर यूनिट कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है तो उससे मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगा. सो फ्रॉम हियर कैन आई से 120 कॉल्स का टोटल कॉस्ट 9600 पैसे. फर्दरमोर 150 कॉल्स का पर हेड कॉस्ट मुझे 75 पैसा दिया हुआ है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास 150 कॉल्स का टोटल कॉस्ट आ जाएगा. सो 15 इंटू 75 दैट इज 750 प्लस 375 11250. ओके, सो 150 कॉल्स का जो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ रहा है वो 11250 पैसा है. अब अगर हम 120 कॉल्स कर रहे थे तो कॉस्ट इतना था. अगर हम 150 कॉल्स कर रहे हैं तो कॉस्ट इतना है. इस कॉस्ट से लेकर इस कॉस्ट में जाना है तो मुझे 30 कॉल्स का वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा. यहाँ पे 120 कॉल्स थी, यहाँ पे 150 कॉल्स थी. ये दोनों में डिफरेंस कितने का आया? ये दोनों में डिफरेंस आया 30 कॉल्स की वेरिएबल कॉस्ट का. तो कहना है से इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस 1650, कहना है से इन दोनों का जो डिफरेंस है 1650 पैसा वो 30 कॉल्स का वेरिएबल कॉस्ट है, और परहैप्स द वेरिएबल कॉस्ट per call is 55 paisa. So up to this point I have deduced that the variable cost per call is 55 paisa. Now what does my question ask me to do? My question asks me to find the total cost of 200 calls. After all अगर मैं 200 calls का total cost निकालूंगा तो ही मैं per call का average cost निकाल पाऊंगा.
So next what I'm going to do is that I'm going to try to solve the question to find the total cost for 200 calls. अगर 150 कॉल्स का टोटल कॉस्ट मेरे पास 11,250 पैसे है और मुझे यहां से 200 कॉल्स का टोटल कॉस्ट निकालना है, तो कहना है इसे 150 कॉल से 200 कॉल्स जाते हुए या 150 कॉल्स की टोटल कॉस्ट को 200 कॉल्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसके अंदर 50 कॉल्स का वेरिएबल कॉस्ट ऐड करना है. Now what was the variable cost of one call? 55 paisa. So what will be the variable cost of 50 calls? The variable cost of 50 calls will be 55 into 5 or perhaps 2750 paisa. Now if 2750 paisa is the variable cost of 50 more calls or 50 additional calls, कहना है इसे इस कॉस्ट के अंदर अगर मैं 2750 ऐड कर दूं तो मेरे पास 14,000 पैसा 200 कॉल्स का टोटल कॉस्ट आएगा. अब अगर 14,000 पैसा 200 कॉल्स का टोटल कॉस्ट है तो फ्रॉम हियर कैन आई से द कॉस्ट पर हेड विल बी 70 पैसा. होपफुली वी आर फॉलोइंग दिस specific example. With this we end with the topic of partly fixed and partly varying quantities. Next we move on to joint proportion. Let us say there are three variables x, y and z. Now variable x varies directly with y. Also variable x varies directly with z. अगर वेरिएबल x y के साथ डायरेक्टली वेरी करता है और वेरिएबल x z के साथ भी डायरेक्टली वेरी करता है, then according to the concept of joint proportion I can say that variable x varies jointly with the product of variable y and variable z. That's it. Joint proportion का कंसेप्ट हमारे पेपर के पर्सपेक्टिव से इतना ही है. हमें इससे ज़्यादा डिटेल में joint proportion के कंसेप्ट में नहीं जाना. Now let us try 3 examples on this concept and then we move on to the next topic. X varies directly with y and x varies directly with z. If x decreases by 20% and y increases by 25%, then find the percentage change in z. The first part of my question says that x varies directly with y and x varies directly with z. From this, can I say x varies jointly with the product of y and z? Now if x varies jointly with the product of y and z, from here can I say x1 by y1 z1 is equals to x2 by y2 z2? इस कंसेप्ट को हमने वेरिएशंस के लेक्चर 1 में पढ़ा है. अगर हमें डायरेक्ट वेरिएशन का रिलेशन दिया हो तो हम उससे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. So if x varies directly with the product of y and z, from there I can say x1 by y1 z1 is equals to x2 by y2 z2. Next part of my question says that the value of x decreased by 20% and the value of y increased by 25%. Since मुझे x की वैल्यू गिवन नहीं है और मुझे उसमें 20% का डिक्रीज करना है, the easiest thing to do is to assume the value of x as 100. Similarly, अगर मुझे y की वैल्यू में 25% का इंक्रीज करना है तो it is also reasonable to assume the value of y as 100. So what I'm going to do is that I'm going to assume the original value of x as 100, original value of y as 100, as well as the original value of z as 100. Now since x decreased by 20%, can I say 100 में 20% का decrease will take me to 80 and y increased by 25%. So y में 25% का increase will take me to 125. इस रिलेशन को यूज करके मैं z2 का या z का दूसरा वैल्यू निकाल सकता हूँ. इसको सॉल्व कर लेते हैं. सबसे पहले 100 cancels 100. Now this is 25 4s are, this is 25 5s are. On rearranging the terms, the value of z2 that I'm going to get is 80 into 4 divided by 5. Now this is 16, so 16 4s are 64. तो यहाँ पे मेरे पास जो z का नया वैल्यू आ रहा है वो 64 है. By the way, what was the original value of z?
I had supposed the original value of z to be 100. Now if I had supposed the original value of z to be 100 and the new value is turning out to be 64, what is the percentage decrease in value? It is 36%. Hopefully we are finding this basic example on joint variation very easy. Let's move on to the next example now. X varies inversely with y and z too varies inversely with y. If there's a 10% increase in x and a 10% decrease in z, what is the percentage change in y? My question says that x varies inversely with y and z also varies inversely with y. क्योंकि मुझे ज्वाइंट प्रोपोर्शन को y के टर्म्स में बनाना है, तो let me rearrange the terms here. If x varies inversely with y, can I say y varies inversely with x? And similarly, if z varies inversely with y, can I say y varies inversely with z? Combining these two, can I say y varies jointly with the reciprocal of x and z? Now, अगर y x और z के प्रोडक्ट के साथ इनवर्स वेरिएशन में है, from this inverse variation I can create the equation y1 x1 z1 is equals to y2 x2 z2. Furthermore, my question says that the value of x increases by 10% and the value of z decreases by 10%. Working on the concept of previous question, let us assume the original value of y as 100, original value of x as 100 and original value of z as 100. Now, since x has increased by 10%, can I say the new value of x should be 110? अगर पुराना वैल्यू 100 था तो 10% इंक्रीज के साथ वो 110 हो जाएगा. जो z है वो 10% डिक्रीज कर गया, तो अगर z का ओरिजिनल वैल्यू 100 है तो z का नया वैल्यू 90 हो जाएगा. इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम y2 की वैल्यू या y की नई वैल्यू निकाल सकते हैं. सबसे पहले तो जीरोस कैंसिल कर लेते हैं एंड फर्दर कैन आई से y2 इज नथिंग बट 100 into 100 10,000 by 99. अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं. इवेंचुअली व्हाट यू आर गोना गेट इज 101.010101 and so on. Now, if your original value of y was 100 and the new value of y is turning out to be 101.010101, by comparing these two, can I say y has increased by 1.01% approximately? Hopefully we are finding the questions of joint proportion very easy. One more example and then we end this topic. X varies directly with y and varies inversely with z. If there's a 10% increase in y and a 10% decrease in z, what is the percentage change in x? As per my given question, x varies directly with y and x varies inversely with z. If I combine these two, what I get is x varies with y by z. अब इस वेरिएशन के रिलेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है. सो आई कैन कन्वर्ट दिस वेरिएशन इनटू एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x1 z1 by y1 is equals to x2 z2 by y2. Furthermore, my question says that y increases by 10% while z decreases by 10%. As we have done in the previous two examples, I am going to suppose the original value of x, z and y to be 100. तो मैंने यहाँ पे x की ओरिजिनल वैल्यू को 100 मान लिया, z की ओरिजिनल वैल्यू को 100 मान लिया और y की ओरिजिनल वैल्यू को भी 100 मान लिया. अब मुझे x का नया वैल्यू निकालना है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो y है वो 10% इंक्रीज किया है. अब अगर y का ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास 100 था तो कहना है से y का नया वैल्यू 110 हो जाएगा. 10% का इंक्रीज है. और जो z है वो 10% से डिक्रीज किया है, तो अगर z का ओरिजिनल वैल्यू हम 100 सपोज कर रहे थे तो उसका नया वैल्यू 90 हो जाएगा. इसको यूज करके हम x का नया वैल्यू निकाल सकते हैं. आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x2. इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं. 100 से 100 कैंसिल होता है, 0 से 0 कैंसिल होता है. इस 11 को इधर ले आते हैं. सो 11 into 100 by 9 is the value of x2.
नाउ अगर हमने बेसिक परसेंटेजेस का चैप्टर किया हुआ है तो 100 by 9 gives me 11.11. So what is the value of x2? The value of x2 is 11 times 11.11. इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया जा सकता है. So what do I get here as the value of x2 is 1, 2, 2, 2, 1 and decimal. So the new value of x2 turns out to be 122.21. Now what was the original value of x? It was 100. So compared with this 100, if the new value is 122.21, can I say the percentage increase in the value of x is nothing but 22.21%? Hopefully, these three examples give us some basic taste of the concept of joint proportion or joint variation. Next, we take this concept of joint variation into the concept of chain rule. Now, let us understand the concept of chain rule using a very simple example. 10 carpenters construct 10 chairs in 10 days. How many chairs will be made by 5 carpenters in 5 days? इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि 10 कारपेंटर्स 10 दिन काम करने पे 10 चेयर्स बनाते हैं. सवाल मेरा ये है कि अगर 5 कारपेंटर्स 5 दिन तक काम कर रहे हैं तो कितनी चेयर्स बनेंगी. अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बिल्कुल ही बचकाना सा लॉजिक डेवलप करते हैं. दैट इज लाइक 10 10 10 देयरफॉर 5 5 5 सो 5 चेयर्स आंसर होना चाहिए. ऑब्वियसली ये गलत है. दिस इज नॉट हाउ मैथ्स वर्क. इट इज नॉट लाइक 10 10 10 एंड 5 5 5 शुड गेट मी दी 5 चेयर्स एज द आंसर. हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस क्वेश्चन? Can I try to interpret this question as in terms of 3 variables? यहाँ पे मेरे पास 3 variables हैं. First we have the number of carpenters. Let us represent that with n. Then we have the number of chairs. Let us represent that with variable c. And finally I have number of days. So let us represent that with variable d. Now, if I have to interpret the question, the first thing that I should be doing is that I should be trying to establish a relationship between these 3 variables. Let us try doing that. अगर मैं नंबर ऑफ कारपेंटर्स को नंबर ऑफ चेयर्स के साथ कंपेयर करता हूं तो एक चीज जो मुझे समझ लगेगी वो ये है कि जितने नंबर ऑफ कारपेंटर्स ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा चेयर्स बनेंगी एंड वाइस वर्सा. सो कैन आई से नंबर ऑफ चेयर्स इज इन डायरेक्ट वेरिएशन टू द नंबर ऑफ कारपेंटर्स. नाउ इफ आई कंसिडर द नंबर ऑफ डेज, इट इज अ बेसिक कॉमन सेंस लॉजिक कि जितने दिन ज्यादा काम होगा उतनी ज्यादा चेयर्स बनेंगी एंड वाइस वर्सा. So can I say number of chairs is in direct variation with the number of days? Now, if number of chairs is in direct variation with the number of carpenters and number of chairs is in direct variation with the number of days, then can I say that by combining the two, number of chairs varies jointly with the number of carpenters and the number of days? अब ये जो direct variation का relation मैंने establish किया है, इसको I can convert it into an equation of the form C1 by N1 D1 is equals to C2 by N2 D2. Next, my question says that 10 carpenters worked for 10 days to construct 10 chairs. So can I say C1, N1 और D1 का value 10, 10, 10 हो गया. Also, 5 carpenters are working for 5 days. तो from here can I say N2 का value 5 हो गया और D2 का value भी 5 हो गया. इसको सॉल्व करके C2 निकाला जा सकता है. Let's do that. So original number of chairs were 10, original number of days were 10, original number of carpenters were 10. Now I have to find the new number of chairs. So this is what the equation looks like. इसको सॉल्व करते हैं. 10 cancels 10, then 5 2s are. अच्छा ये 5 को इधर ले जाते हैं. From here I can say that the number of chairs will be 5 by 2 or 2.5 chairs. Hopefully we are following this question. The number of chairs constructed by 5 carpenters in 5 days will be 2.5 chairs or 5 by 2 chairs. This is the method of solving the question by using the concept of joint variation or joint proportion. There is an easier method of solving the same question, the method that we like to call chain rule. Now chain rule is a simple two-step procedure. In the first step of chain rule, we identify the original value of that variable जिसका हमने नया वैल्यू निकालना है. So इस केस में अगर मुझे number of chairs का नया वैल्यू निकालना है तो I begin the question by writing down the original value of the number of chairs. Next, we move on to the number of carpenters. Now when I'm considering the number of carpenters, I'm gonna assume every other thing, every other variable is constant.
सो व्हाट आई डू हियर इज दैट मैं बाकी सारे वेरिएबल्स को टेम्परेरीली कांस्टेंट रख के भूल जाता हूं और सिर्फ नंबर ऑफ कारपेंटर्स के ऊपर फोकस करता हूं। अगर मेरे नंबर ऑफ कारपेंटर्स पहले 10 थे और अब 5 हो गए हैं, अगर मेरे नंबर ऑफ कारपेंटर्स डिक्रीज किए हैं, तो नंबर ऑफ चेयर्स जो मैंने कंस्ट्रक्ट की हैं वो इंक्रीज करेंगी कि डिक्रीज करेंगी? ऑफ कोर्स, अगर काम करने वाले बंदे कम हो रहे हैं तो नंबर ऑफ चेयर्स भी कम बनेगी। सो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट द नंबर ऑफ चेयर्स शुड रिड्यूस। दैट मीन्स जो मेरी नंबर ऑफ चेयर्स की ओरिजिनल वैल्यू 10 थी, if I am considering only the number of carpenters, nothing else, just considering this part, जो मेरी नंबर ऑफ चेयर्स की ओरिजिनल वैल्यू 10 थी, क्योंकि नंबर ऑफ कारपेंटर्स कम हो गए हैं तो नंबर ऑफ चेयर्स की नई वैल्यू 10 से कम होगी। अब जिस रेशो में वो कम होगी दैट विल बी गिवन बाय द रेशो ऑफ 10 and 5। बेसिकली हमने वेरिएशंस में समझा था कि जब दो वेरिएबल्स डायरेक्ट वेरिएशन में होते हैं तो उनका इंक्रीज या डिक्रीज का परसेंटेज चेंज या प्रोपोर्शन सेम रहता है। सो जब दो वेरिएबल्स डायरेक्ट वेरिएशन में होते हैं तो वो सेम प्रोपोर्शन में चेंज करते हैं। यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ कारपेंटर्स एंड नंबर ऑफ चेयर्स सेम प्रोपोर्शन में है या डायरेक्ट वेरिएशन में है, तो उनका चेंज भी सेम प्रोपोर्शन में होगा। सो जिस प्रोपोर्शन में मेरे कारपेंटर्स डिक्रीज हुए हैं उसी प्रोपोर्शन में मेरी नंबर ऑफ चेयर्स डिक्रीज होंगी। अब अगर मेरे नंबर ऑफ कारपेंटर्स 10 से 5 हुए हैं, हाफ हुए हैं, तो नंबर ऑफ चेयर्स भी हाफ होंगी। सो बेसिकली व्हाट आई से इज दैट नंबर ऑफ चेयर्स को ओरिजिनली हमने 10 लिया था, इसको आई एम गोना मल्टीप्लाई विद 5/10 बिकॉज नंबर ऑफ कारपेंटर्स 10 से 5 हुए हैं, और जब नंबर ऑफ कारपेंटर्स 10 से 5 हुए हैं तो मुझे नंबर ऑफ चेयर्स की वैल्यू को रिड्यूस करना है। अब जब नंबर ऑफ चेयर्स की वैल्यू को रिड्यूस करना है तो आई विल हैव टू मल्टीप्लाई द ओरिजिनल नंबर ऑफ चेयर्स विद अ नंबर और विद अ फ्रैक्शन व्हिच इज स्मॉलर देन 1। अब अगर मुझे फ्रैक्शन को स्मॉलर देन 1 बनाना है तो मैं 5 को न्यूमरेटर में रखूंगा और 10 को डिनोमिनेटर में रखूंगा। होपफुली वी आर फॉलोइंग दिस लॉजिक। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क। अब जब मैंने कारपेंटर्स को कंसिडर किया था तो मैंने बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट लिया था। अब जब मैं नंबर ऑफ डेज को कंसिडर कर रहा हूं तो मैं बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट ले रहा हूं। आई एम जस्ट कंसिडरिंग कि अगर नंबर ऑफ डेज 10 से डिक्रीज होकर 5 हुए हैं तो उसका चेयर्स के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। ऑब्वियसली नंबर ऑफ चेयर्स आर ऑल्सो इन डायरेक्ट वेरिएशन विद नंबर ऑफ डेज, तो अगर नंबर ऑफ डेज 10 से रिड्यूस होकर 5 हुए हैं तो उस केस में जो नंबर ऑफ चेयर्स हैं वो भी उसी प्रोपोर्शन में कम होंगी। अब क्योंकि मुझे नंबर ऑफ चेयर्स को कम करना है तो मैं यहाँ पे जो 5 है जो कि छोटी वैल्यू है उसको न्यूमरेटर में रखूंगा और बड़ी वैल्यू 10 को डिनोमिनेटर में रखूंगा। नाउ दिस इज द चेन दैट आई नाउ नीड टू सॉल्व। ऑन सॉल्विंग आई गेट द आंसर डायरेक्टली एज 2.5। होपफुली वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल। Chain rule is a very handy method, and the beauty of the method is that once you understand how to apply chain rule, you can solve almost every question of this type in a single step. Let's try out few more examples here. 10 carpenters construct 15 chairs in 25 days. How many chairs will be made by 18 carpenters in 15 days? As per my given question, I have 10 carpenters who are constructing 15 chairs in 25 days. The question is to find the number of chairs which will be constructed by 18 carpenters in 15 days. If we understand the concept of chain rule from the previous example, we can directly say that the first step is to write the number of chairs. अगर मुझे number of chairs का नया वैल्यू निकालना है तो पहला स्टेप है number of chairs का ओरिजिनल वैल्यू लिख लेते हैं as 15। अब सारी चीजों को भूल जाओ, सिर्फ number of carpenters के ऊपर फोकस करो। अगर number of carpenters पहले 10 थे और अब 18 है तो नंबर ऑफ कारपेंटर्स की इंक्रीज के कारण नंबर ऑफ चेयर्स ज्यादा बनेंगी कि कम बनेंगी? ऑब्वियसली ज्यादा बनेंगी। सो ये जो 15 है मुझे इसको एक ऐसे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है जिससे 15 का वैल्यू बड़ा हो जाए। दैट मीन्स मुझे इसे जिस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। सो कंपेयर 18 एंड 10। यहाँ पे क्योंकि मुझे 15 को बड़ा करना है तो बड़ी वैल्यू जो कि 18 है वो न्यूमरेटर में जाएगी और जो छोटी वैल्यू 10 है वो डिनोमिनेटर में आएगी। Now we have handled the variation of carpenters. Let's move on to the number of days. पहले हम 25 डेज तक काम करते थे, अब हम 15 दिन के लिए काम कर रहे हैं। अगर नंबर ऑफ डेज रिड्यूस हुए हैं तो नंबर ऑफ चेयर्स कम बनेंगी। अब अगर नंबर ऑफ चेयर्स कम बनेंगी तो हमें 15 की वैल्यू को छोटा करना है।
15 की वैल्यू को छोटा करने का मतलब न्यूमरेटर में छोटा वैल्यू रखना है, डिनोमिनेटर में बड़ा वैल्यू रखना है. सो आई मल्टीप्लाई दिस एक्सप्रेशन विद 15/25. 15 छोटा वैल्यू था वो न्यूमरेटर में जाएगा, 25 बड़ा वैल्यू था वो डिनोमिनेटर में आएगा. अब आंसर निकालने के लिए मुझे सिर्फ इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है. लेट्स डू दैट. दिस इज 5 2s are and this is 5 3s are. Furthermore, this is 5 3s are and this is 5 5s are. अच्छा 2 and 5 मेरे पास डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट में 10 बना रहे हैं. न्यूमरेटर का प्रोडक्ट देख लेते हैं. 3 into 3 ends up becoming 9. Now 9 into 18. अच्छा 18 को I can write it as 9 into 2. So basically 9 into 9, 81 into 2, 162. So 162 divided by 10 gets me 16.2 as the answer. So at the end of the day, 16.2 chairs would be made. Hopefully, we are following the concept of chain rule. 2-3 more examples and then we end the chapter. When 8 bulbs are kept on for 10 hours per day, the total cost of electricity consumed is rupees 500. If electricity cost had been limited to rupees 375 only and we keep only 5 bulbs on, how many hours per day can the bulbs be kept on? इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि 8 बल्ब्स अगर रोज 10 घंटे चलते हैं तो मेरा टोटल बिल आता है 500 रुपए. अभी मुझे बताना है कि मैं 5 बल्ब्स को कितनी देर के लिए चला सकता हूं ताकि मेरा बिल 375 रुपीज आए. Again, applying chain rule, the first step is to write down the original value of the variable that I am required to find. तो मुझे number of hours का वैल्यू निकालना है, तो मैंने number of hours का ओरिजिनल वैल्यू 10 यहाँ पे लिख दिया. Now let us forget everything else. Let us keep everything else constant. By the way, that also means the total bill as constant. Let us keep everything as constant, the total bill as constant, and just focus on the number of bulbs. अगर मैंने नंबर ऑफ बल्ब्स को 8 से रिड्यूस करके 5 किया, दैट मीन्स पहले मैं 8 बल्ब्स को ऑन रख रहा था, अब उसकी जगह मैं 5 बल्ब्स को ऑन रख रहा हूं. अगर मैंने नंबर ऑफ बल्ब्स को रिड्यूस किया है और मेरी बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं, बिल कांस्टेंट है, तो कहना है इसे क्योंकि मेरे बल्ब्स कम हुए हैं और बिल मेरा कांस्टेंट है, तो उनको जितनी देर जगाया जा सकता है, उनको जितनी देर ऑन रखा जा सकता है, दैट वुड इंक्रीज. So basically, if I am reducing the number of bulbs and I am keeping everything else constant, the number of hours would increase. अब अगर मुझे 10 को increase करना है तो again न्यूमरेटर में बड़ा वैल्यू जाएगा, डिनोमिनेटर में छोटा वैल्यू आएगा. So 10 gets multiplied with 8/5. Now let us forget the number of bulbs and just focus on the bill. अगर हमारा इनिशियल बिल 500 रुपीज था और नया बिल 375 रुपीज है, इफ आई एम रिड्यूसिंग माई बिल, अगर मैंने अपने बिल को रिड्यूस करना है तो ऑब्वियसली मुझे बल्ब्स को कम टाइम के लिए ऑन रखना पड़ेगा. सो जो 10 आवर्स का इनिशियल वैल्यू था इसको रिड्यूस करना है. रिड्यूस करने के लिए आई मल्टीप्लाई दैट विद 375/500. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सबसे पहले 5 से कटिंग करते हैं, ये 100 बन गया. अच्छा इसका 5 से कटिंग होगा तो 5 and 7 are 35 and 75. ओके अच्छा इसका 5 से कटिंग कर लेते हैं, ये 15 आ गया. 0 से 0 कैंसिल हो गया. दिस इज 4 and 5 3. सो माई फाइनल आंसर इज 4 into 3 12 hours. Hopefully, we are able to follow the concept of chain rule up to this example. Let's move on to the next example now. 7 carpenters construct 10 chairs in 12 days, working 8 hours a day. How many days will it take to construct 15 chairs if 4 carpenters are working 9 hours a day? इस क्वेश्चन में मेरे पास 4 वेरिएबल्स हैं. नंबर ऑफ कारपेंटर्स, नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ आवर्स. As per my chain rule, the first step is to write the value, the original value of that variable जिसका मुझे नया वैल्यू निकालना है. तो अगर मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ डेज का नया वैल्यू निकालना है, स्टेप 1 is to write the original value of the number of days as 12 days. Now let us keep everything else as constant. So number of chairs constant कर दिया, hours per day constant कर दिया, everything else is constant and I'm just focusing on the number of carpenters. अगर हम पहले 7 कारपेंटर्स को लगाकर एक सर्टेन वर्क खत्म करते थे और अब हम 7 की बजाय 4 कारपेंटर्स लगा रहे हैं, दैट मींस नंबर ऑफ हैंड्स व्हिच आर वर्किंग हैव रिड्यूस्ड. अगर काम करने वाले बंदे कम हो गए हैं तो टाइम टेकन इंक्रीज कर जाएगा. सो अगर हम पहले 12 डेज में इस काम को खत्म करते थे, क्योंकि नंबर ऑफ कारपेंटर्स कम हुए हैं तो नंबर ऑफ डेज विल इंक्रीज. नाउ हाउ डू यू डिफाइन दिस इंक्रीज? यू डिफाइन दिस इंक्रीज बाय मल्टीप्लाइंग दिस 12 with 7/4. ऑब्वियसली मुझे 12 को बड़ा करना है तो 7 न्यूमरेटर में जाएगा, 4 जो कि छोटी वैल्यू है डिनोमिनेटर में आएगी.
Now we have established the variation between carpenters and days. Now let's move on to the number of chairs. Again, keep everything else as constant. Forget about everything. Keep everything else as constant. Just focus on the number of chairs. पहले हमें 10 चेयर्स बनानी थी, अब हमें 15 चेयर्स बनानी है. इन अ वे जो मुझे टोटल वर्क करना है वो ही इंक्रीज कर गया. तो पहले मुझे 10 चेयर्स का काम करना था, अभी मुझे 15 चेयर्स का काम करना है. सिंस माय वर्क डन हैज इंक्रीज्ड, the number of days will increase. So this 12 needs to be multiplied with 15 by 10. 15 बड़ा था वो ऊपर आएगा, 10 छोटा था वो डिनोमिनेटर में जाएगा. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू आवर्स पर डे. पहले हम एक सर्टेन वर्क को 8 आवर्स रोज पे कर रहे थे, अब हम उसी वर्क को 9 आवर्स पर रोज पे कर रहे हैं. अगर हम पहले रोज का 8 घंटे का काम करते थे, अब हम उसकी जगह रोज 9 आवर्स वर्क लगा रहे हैं, 9 आवर्स काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ डेज रिड्यूस हो जाएंगे. सो अब अगर नंबर ऑफ डेज रिड्यूस होते हैं तो मुझे 12 को मल्टीप्लाई करना है 8 by 9 से. 8 छोटी वैल्यू है वो ऊपर जाएगी, 9 बड़ी वैल्यू है वो नीचे आएगी. नाउ वी हैव गॉट दिस एक्सप्रेशन. इसको सॉल्व करने पे हमारे पास नंबर ऑफ डेज का नया वैल्यू आ जाएगा. लेट्स जस्ट डू दैट. सबसे पहले 4 2s are 8. नाउ व्हाट इज 9? 9 इज नथिंग बट 3 3s are एंड 12 इज 4 3s are. तो इनका मैंने 3 से कटिंग कर दिया. इसके बाद इसका अगर 5 से कटिंग करें तो दिस इज 5 2s are, this is 5 3s are and this is 5 2s are. 2 से 2 कैंसिल हो गया. अच्छा, now what do we have? Okay, 3 gets cancelled with 3, so we are left with 4 into 7. 28 days is the answer. Hopefully with these 3-4 examples at hand, we are getting some confidence in the concept of chain rule. 2 more examples and then we wind up with the chapter of variations. 15 painters can paint the entire area of a square of side 25 meters in 10 hours. How many painters are needed to paint the entire area of a square of side 40 meters in 6 hours? As per my given question, I have 15 painters who are working for 10 hours to paint a square of area 25 meters. Now the important thing to understand here is that the variation is not between the painters and the side of the square. The variation is between the painters and the area of the square. एक सिंपल सा फंडा समझते हैं. अगर हम 25 मीटर्स के एक स्क्वायर को पेंट कर रहे हैं तो पेंट करने में जो टाइम लगेगा that won't be proportional to this length of the side. That would rather be proportional to this area. So instead of thinking the question in terms of 25 meters, I have to now think of the question in terms of the area of the square. तो अगर स्क्वायर की एक साइड 25 meters है तो कैन आई से एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बी 625 मीटर स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ द सेकेंड स्क्वायर जिसका साइड 40 meters था विल टर्न आउट टू बी 1600 मीटर स्क्वायर. आई होप वी आर फॉलोइंग दिस पॉइंट. जो टोटल वर्क डन है दैट इज नॉट गिवन टू मी इन टर्म्स ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर. द टोटल वर्क डन इज गिवन टू मी इन टर्म्स ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर टू बी पेंटेड. तो अगर हम 25 मीटर्स के साथ प्रोपोर्शनैलिटी बनाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, बिकॉज प्रोपोर्शनैलिटी 25 मीटर्स या साइड ऑफ द स्क्वायर के साथ एग्जिस्ट नहीं करती. प्रोपोर्शनैलिटी 625 मीटर्स यानी कि एरिया ऑफ द स्क्वायर के साथ एग्जिस्ट करती है. होपफुली वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट. Now if we are able to understand this concept, let's get back onto the example. 15 पेंटर्स 10 घंटे में 625 मीटर्स के एरिया को पेंट करते हैं. क्वेश्चन ये है कि कितने पेंटर्स 6 आवर्स में 1600 मीटर स्क्वायर के एरिया को पेंट करेंगे. आई कैन अप्लाई द चेन रूल. टू स्टार्ट विद माई चेन रूल, आई राइट डाउन द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ पेंटर्स विच इज 15. नाउ forget everything else, just focus on the number of hours. अगर हम पहले 10 hours लगा रहे थे और अब हम 6 hours लगा रहे हैं, that means अब काम खत्म करने के लिए कम टाइम अवेलेबल है. अब अगर काम खत्म करने के लिए कम टाइम अवेलेबल है तो मुझे ज्यादा नंबर ऑफ पेंटर्स लगाने पड़ेंगे. दैट मीन्स जो नंबर ऑफ पेंटर्स है उसका वैल्यू 15 से इंक्रीज होगा. सो आई टेक द ओरिजिनल वैल्यू 15 एंड आई मल्टीप्लाई दैट विद 10/6. 10/6 बिकॉज मुझे 15 को बड़ा करना है, तो बड़ा करने के लिए जो बड़ा वैल्यू है वो न्यूमरेटर में जाएगा और जो छोटा वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में आएगा. नाउ लेट अस कंसिडर द एरिया ऑफ द स्क्वायर. अगर पहले हम 625 मीटर स्क्वायर के एरिया को पेंट कर रहे थे और अब हम 1600 मीटर स्क्वायर के एरिया को पेंट कर रहे हैं, तो कैन आई से दैट बिकॉज द एरिया टू बी पेंटेड हैज इंक्रीज्ड,
the number of painters would also have to be increased. So जो मेरा 15 का ओरिजिनल वैल्यू था इसको मुझे इंक्रीज करना है, और अगर मुझे इसे इंक्रीज करना है तो I'll keep the larger value in the numerator and the smaller value in the denominator. Now all we have to do is that we have to solve this expression. Solve करने के लिए सबसे पहले let's have this cutting. This is 5 2s are and this is 5 times 125. Furthermore, this is 5 3s are and this is 5 times 25. Now 3 into 2 is 6, so that cancels the denominator. Now furthermore 25 cancels 100 to give me a 4, so what I'm left with 16 into 4 or perhaps 64 painters is my answer. Hopefully we are able to solve the questions up to this example. One more example and then we end with the chapter of variations. A work can be completed by a team of 40 men in 50 days. All of them start working together, but after 10 days, 8 men quit while the remaining continue working. How many more days from now onwards will the work take to get completed? The first thing given to me in this question is that the total work is completed by 40 men in 50 days. So can I say जो total work है वो 40 men के 50 days के effort के बराबर है. The next part of my question says कि इन सब लोगों ने इकट्ठे मिलकर काम करना शुरू कर दिया. So basically ये 40 के 40 लोग इकट्ठे काम को शुरू करते हैं, लेकिन 10 दिनों के बाद इनमें से 8 लोग काम छोड़कर चला जाते हैं. Now let me represent the total work that I have in the form of this circle. तो ये जो circle है ये मेरा total work represent करता है. So can I say this circle is equivalent to the effort of 40 men working for 50 days? Now my question says that after working for 10 days 8 people quit. So पहले 10 दिन तो 40 के 40 लोग काम कर रहे थे. अब अगर ये पूरा सर्कल is equivalent to the work done by 40 men in 50 days, then let us say this much amount of work was done by 40 men in first 10 days. अब अगर 40 men ने पहले 10 days में इतना काम खत्म कर दिया है तो can I say this remaining work will be equivalent to the effort of 40 men for 40 days. Hopefully we are following this concept here. अगर ये पूरा सर्कल टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है और टोटल वर्क को 40 men 50 डेज में खत्म कर सकते हैं, इसमें से इतना वर्क 40 men ने पहले 10 डेज में खत्म कर दिया, तो बचा हुआ काम जो है उसको करने के लिए 40 men को 40 डेज लगेंगे. लेकिन अब हमारे पास 40 men अवेलेबल है नहीं, बिकॉज 10 दिन के बाद 8 लोग इनमें से चले गए. दैट मीन्स 40 की बजाय अब मेरे पास 32 लोग अवेलेबल है इस काम को करने के लिए. मुझे निकालना है कि कितना नंबर ऑफ डेज लगेगा. अप्लाइंग द बेसिक कंसेप्ट ऑफ चेन रूल, कैन आई से अगर मुझे नंबर ऑफ डेज की नई वैल्यू निकालनी है तो आई कैन बिगिन द क्वेश्चन बाय राइटिंग द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ डेज. अब पहले 40 men काम करते थे, अब 32 men काम करते हैं. अगर नंबर ऑफ पीपल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट हैव रिड्यूस्ड, देन द टाइम टेकन और द डेज टेकन वुड इंक्रीज. तो मुझे इस 40 को मल्टीप्लाई किससे करना है? 40 by 32 से. जो बड़ी वैल्यू है उसको मैं न्यूमरेटर में रखूंगा, छोटी वैल्यू को मैं डिनोमिनेटर में रखूंगा, बिकॉज मुझे नंबर ऑफ डेज की एक्चुअल वैल्यू को इंक्रीज करना है. नाउ दिस थिंग कैन बी सॉल्व्ड. दिस इज नथिंग बट 8 5s are and this is 8 4s are. Furthermore 4 से कटिंग करने पे 10 आता है. So can I say my final answer ends up becoming 50 days. Hopefully we all are able to follow example 6. Now as far as the questions of chain rule are concerned, most of the time the questions that you would be getting will be pretty basic questions. So इस तरीके के questions आने का probability chain rule में कम है. टाइम एंड वर्क के चैप्टर में हम इस तरीके के खूब सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे एंड विल बी लर्निंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग एंड हैंडलिंग सच क्वेश्चंस इन टाइम एंड वर्क. So as far as the chapter of variations is concerned, with this example we end not just the discussion on chain rule, but we also end the entire discussion on the chapter of variations. Hopefully we do not have any doubts in the theory that I've taught here.